परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर वैसाखी का पुरब खालसा जी का प्रगट दिवस आप जी मना रहे हो। खालसे दे संबंध विच जो हजूर ने उपमा की, उस रचना का उस बाणी का पाठ कीर्तन और विचार आप जी ने श्रवण किए। हजूर दे अपने पवित्र मुखार दिन तो कहे हुए अमृत बोल कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सुत कह के निवाजिया, पंथ दे प्रचार वास्ते प्रसार वास्ते आप भेजिया। मैं अपना सुत तुहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। जहां कहां तै धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। पर नाम हजूर ने इस पंथ दे प्रचार लई प्रसार लई अकाल पुरख दे चरनां विच ओ अथाह शक्ति, ओ ताकत, ओ बख्शिश इस खालसे वास्ते इस पंथ ने मंग लई कि ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिरनाए। पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। आप जी की सहायता की बदौलत ये पंथ चलेगा। इस दे संबंध विच आप जी ने बचन सरवण किए ते हजूर ने तां इन्नी एक सुरता दस दी कि जिसने गुरु तो अमृत की दात लई, उस अमृत नूं नाम अमृत अंदर तैयार करके रोज पींदा रहा। आत्मा दे रस नूं मानन लग पिया। आत्म रस नूं शायद कहते सचमुच वो प्रकाश रूप खालसा हो गया। उस विच परमेश्वर विच ते हजूर दे वचन अनुसार कह लगे मेरे विच रंचक मात्र भी कोई अंतर नहीं। आत्म रस जे जान की सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक ना ही पे। इतनी बख्शिश हजूर ने की। खैर जो असी पिछले तकरीबन अज 7वां दिन हो चला है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों भगत धन्ना साहिब जी की उच्चारण की कोई बाणी, उसकी व्याख्या विचार करने लई हजूर की कृपा नाल पहले शब्द की प्रारंभता की। उस शब्द विच आए कोई भगत जी दे अमृत बोल एक एक दिन आपां टेके विचारते रहे। जिस दिन इस बाणी की शुरुआत की थी, उस दिन अर्ज की सी कि भगत धन्ना साहब जी किरत करते हैं, अपने काम कार विच वो मस्त ने। भावां के तवारीख ते कुछ साहित्यक रचना भी ये दसदियां ने कि एक ब्राह्मण नूं पूजा करदियां देख कई सवाल मन विच उठ खड़े होए। ओहदे तो पुछे, उन्हें असलीयत विच अपना खैड़ा छड़ाना चाहा, क्योंकि वह सी इकल्ला कर्म कांडी, ये सी अंदर वाली भावना वाला। ते कई बारी कर्म कांडी बंदे
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਸਿਰਫ ਅਖਰੀ ਜੈ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਸ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਵ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟਕੇ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੌਰੇ ਮਨ ਨੇ, ਇਸ ਝੱਲੇ ਮਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਕ ਫਲ ਪੀਤ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, 4 ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਣਾ, ਉਸ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਨਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਤਾਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਨੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਸੀ ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਠੰਡ ਭਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਖੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਔਗਣ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਣਗੇ। ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਗਣ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ।
उस तो अगे जी 2 दिन तो विचार चल रही सी, कह लगे इस इंसान ने परमात्मा के नाम तनु संचिया नहीं, इकट्ठा की कीता बिक पल संच भरे मन ऐसे, बस मन जहर नाल ही भरिया पे, वेखना जहर बोलना जहर, रोम रोम च जहर भरी पई है। परम पुरख प्रभ मन बिसरे, परम पुरख परमात्मा इंसान के मन विचों भुल गया। फिर हुण दूसरा पक्ष है, कहते कई बार ये निराश हो जाएगा बंदा भी ये तो केवल रोगियों की गल, डिगे हुए की गल, असफल हो चुकिया की गल, जिंदगी की बाजी हार चुकिया की गल। पर अगे भगत साहब कहते ने गुरु ने कृपा की, साडे अंदर ज्ञान का प्रवेश करा दिता, ते गुरु ने ज्ञान का प्रवेश करा अंदर वो धन बख्श दिता। सचमुच कहते ने हुण भावें किरत करिए, भावें असी किते बैठिए, हर वेले ध्यान जिहड़ा वो परमात्मा दे नाल ही जुड़िया रहिंदा। इस संबंधी उदन मैं एक अर्ज कीती सी कि जदों ध्यान पक जाता है, कच्चा नहीं, ध्यान पकाई विच आ जाए प्यारे, उदों किरतकार करदियां भी अंदर दा ध्यान जिहड़ा उहदे नाल जुड़िया रहिंदा। भगत साहब ने एक शब्द कह देना, क्योंकि ये चिंतन सिमरन एक ऐसा है कि जदों गुरु मेहर करदा साधना जरूर करनी पैंदी। एक इल भी जदों किते आकाश विच उड़दी है, वो अपने खंभ मार के धरती तो उपर उठदी है, पर जदों सचमुच उच्ची चली जाए फिर उन्होंने पंख नहीं मारने पैंदे, खंभ नहीं हिलाने पैंदे, फिर तो सिर्फ गगन मंडल दियां उड़ारियां ही मारदी। शुरुआत खंभ ने, चेते रखो खंभ तां ने जे आंडे तू तोड़ के बाहर निकलना है। महाराज जी ने बाणी च भी प्रमाण दिता है, कदी आंडे हवा विच पंछियां दे उड़दे नहीं देखे, उड़नगे पंछी, पर पंछी ओ बनगे जिहड़े आंडे नूं तोड़नगे। कहंदे ने गुरु ने तरस कीता, भरम दा आंडा तोड़ दिता, जंजीरां टुट गईयां, सिमरन ते सेवा दी दात दिती। पहला साधना करदे रहे क्योंकि अजे तुर लगे आ, ते जदों दी किरपा वापर गई हुण तां हर वेले सिमरन चली जांदा। पंख मारने पैंदे ने चलण लई, पर पहुंचिया होया दे तां सारा दिन ही उड़ारी है। बाबा जी ने बाणी विच फरमाया, फूटो आंडा भरम का, मन भयो प्रकाश, काटी बेड़ी पगह ते, गुर कीनी बंद खलास, आमन जान रहो तप्त कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दी। हुण ध्यान किवें पक गया भगत धन्ना जी का। ते मैं पिछले दिनों तो यह शब्द अज फिर दोहरान लगा कि परमार्थ का संबंध अंदर की भावना नाल है। परमार्थ का संबंध केवल चौकियां पढ़ाइया लिखाइया ते चतुराइया नाल नहीं। अर्ज करके आया मैं पिछे कि धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच सुखमनी साहिब विच ना ये विचार वैसे एल सबरन ते चलनी है 3 दिन। मन चाया गुरु जी ने इन्नी कृपा की, एक एक तुक ते रुको, ते मेरा ख्याल है साडे ज्ञान के खंभ सड़ जाते हैं, गुरु का था नहीं पाया जा सकता। कहने 3 चीजा ने पूरी मानवता नूं अग लाई पई। किते जाओ कोई धर्म होवे, कहने लगे एक दुख बंदे नूं टिकन नहीं देंदा। कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, किसी नूं उंज चिंता खा गई है। ते सच्चाई ये वे कि बाहरों चेहरे हसदे खेडदे पए ने, पर अंदर तां अग सांभी बैठे। कि जिन्ना बुझे कि जिन्ना सुझे दुनिया गुज्जी पाहे। महाराज कहते एक दुख सब नूं व्याप रहा है, ते दूजा बंदे नूं डर नहीं टिकण दिंदा पिया, ते तीसरा भरम विच पै गया। दुख ने ते भरम ते डर तिन्हां ने अंदर नूं खिला दिता। कहण लगे तू 3 काम कर ले, तेरे 3 खेड़ा छड़ जा। देखो किहड़े 3 काम? कहंदे दुख तो, भौ तो ते भरम तो बचना ही। ते 3 कामां विचों पहला काम ये वे, जिन्ना मर्जी तू सियाणा है, पर गुरु सामने मत्था टेकदे सियाणा बन के ना। पहला काम ये कर। दूजा कहने लगे सियाणप नाल किते ए ना कही जा वाहिगुरु शब्द क्यों रटना बार बार। सियाणप छड्ड ते सिमरन कर। ते सिमरन करदे तीजी गल, परमात्मा तो बिना किसी का यकीन भरोसा आस न रखी। 3 काम तू कर ले, बाकी 3 तेरा खेड़ा छड़ जा। तजो सियाणप सुरजन हो गया। मैं उत्थे अर्ज की
ये विचार बैठे उत्थे आया भी किस कमाल सतगुरु तजो सियानत सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दूख भरम भौ जाए। तिन्ने खड़ा छड़ के हुण वो ध्यान जिहड़ा भगत धन्ना जी नूं मिलिया वो कहंदे ने भाई देखो हल वाहने आ अपने प्यारे नाल जुड़े आ पट्ठे वढ़दे आ अपने प्यारे नाल जुड़े आ जे किते खूह की गादी ते बैठते ने तां प्यारे नाल जुड़े ने जे वो खेतां भी तुरे फिरते ने तां प्यारे नाल जुड़े ने। भाई गुरदास साहब कहते ने जदों मालक किसी नूं सिर तो पैरां तक भगती दा सरपाव दिंदा है ओदा चलना परिक्रमा हो जाता है ओदा बोलना सिमरन हुंदा है ओदा बहना समाधि बन जाता। वो जो करता बस प्रवान है ये नहीं भी परमात्मा हाँ ये भी सच्चाई है। पहला वाहिगुरू जी वेंदे ने भी ये बंदा की करता है थिड़कदा ते नहीं पर सच्ची मुच्ची जिदन टणका के देख लेंदे ने बिल्कुल पक्का फिर उदों कहंदे ने हुण जो कुछ करदा बस परवान ही जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाणे तू परवान है। वो ध्यान एक किवें हो गया। हालांकि मैं कई बार सोचना भी आपां ध्यान लाइए ते ध्यान लगदा नहीं। वो महापुरुष कह रहे हैं आपां हल वाहने ते ध्यान टुटदा नहीं। खेड कैसी इत्थे पूरी इकाग्रता नाल गुटका हाथी सुखमनी साहब का पढ़िया हुंदा है ते अष्टपदी मन नूं संबोधन कर रही हुंदी है ते सच इवें मन उत्थे गैर हाजिर हुंदा जिन्हों संबोधन किया जा रहा उत्थे है ही नहीं वो गैर हाजिर है। भगत जी कहते हैं ध्यान इन्ना पक गया हुण हाल वाल है दुकान ते बह जा जिथे मर्जी जा ध्यान खिंडदा ही नहीं। क्यों नहीं खिंडदा ਇਹਦਾ उत्तर कबीर साहब जी ने दिता। भावें वो संवाद कबीर साहब ने भगत नामदेव ते तलोचन का दिता है कि नामा माया मोहया कहे तलोचन मीत काहे छीपो छाइलै राम ना लावो चीत नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल अंदर वाला चित वो परमात्मा नाल जुड़िया रहे। सच्ची मुच्ची मेरी एक बेनती जे है साधना बड़ी मुश्किल क्योंकि चित्त का टिकना चित्त एक स्टोर है मन बुद्ध ते चित्त यही अंतशय कर्म है ना अपना असी देखने ये जेड़ा चित्त है ये वाहिगुरू ने कुछ सानू दात दी है पशु कुल ने साडे कोले कल्या को पशु दे भी संतान है ओदे भी रिश्ते ने ओदियां भी नानियां दादियां सारे बनते रिश्ते पर ओदे बच्चे नूं 4 महीने दूर लै जाओ ओदे चेते चों निकल जाता है मेरा बच्चा सी। पर साडे कोल ऐसा चेता है सुरत है ये चेते की इन्नी शक्ति है कि जे बचपन तो लैके 80 साल तक वापरदियां घटनावां चित्त विच टिकियां ने ते जदों कोई सिमरन जब जुड़दा है फिर चित्त उत्थे जा ले जांदा है बंदे नूं जिथों विछड़ के आया सी मालक नाल जोड़ दिंदा। उत्थे भगत जी ने कहा भी काम करदे अंदर वाला ते चित्त जुड़िया सीधी जी गल प्यारिओ जदों रंगरूट भर्ती कोई हुंदा है उदों ओनू गोली चलाण वाले भी कहंदे ने कि जमीन ते लेट जा अखां नूं बंद कर लै आ देखी तू इस राइफल दे विचकार यू एक बनिया ओदे विचों निक्की जी नोक दिसेगी इहदे ते अख जोड़ ते जदों तू दबना घोड़ा चलाण लई अपना साह रोक ले। इन्नी एकाग्रता भी लेट जाना अख बंद कर देनी साह रोक के चला ते जिदन पक जाता फिर चेते रखियो उदन मोटरसाइकिल ते भज्जा भज्जा भी निशाने बनाई जाता श्वास नहीं रोकता। जदों ध्यान पक जाता है उदों ये है दुनियावी गल जदों न्याणा सीधी गल अपने तो अद्धी कैंची साइकिल सिखते सन डंडे नूं हथ पाना एक हैंडल नूं पाना ते सामने 60 फुट की लंबी चौड़ी सड़क ते पत्थर एक पासे पियाना पहली सोचना ये नहीं बजन देना ठा करके बजना भी वो ध्यान नहीं सी। कदी पैडल वेखने कदी बंदे ने हैंडल वेखना कदी डंडे नूं हथ पाना। सच्चाई ये जिदन पक गया ना उदन ना पैडल वेखदा ना खब्बा सज्जा वेखदा तुरिया जांदा है। सिमरन एक प्रैक्टिस है अभ्यास है पर अभ्यास ओदी कृपा लैके ओदी मेहर ते जिस दिन कोई ध्यान जोड़दियां ध्यान विच परपक्क हो जाता है। सच्चाई ये ध्यान भी इतनी वड्डी ताकत वो चूने दे बने गुंबद नूं नहीं पाड़ दिंदा। आ सियालकोट की होया ये
ध्यान की शक्ति एकाग्रता च बड़ी बड़ी रहमत है। सियालकोट हमजा घोष ने यह कहा ना कि यह शहर झूठियां दा है, ते मैं गुंबद च बैठ के वो चलीसा जिहड़े शिला कटदे ने बाहर, उन्होंने लो नहीं लगनी चाहिए, उन्होंने साधना करते हैं किसी के मत्थे नहीं लगना। उहदे कोल साधना का तरीका सी, वो कह लगा इस करके चलीजा कटना सारा शहर खत्म। बाबा नानक जी गए कह लगे जे रब ने तेनू अंदर दी कोई खेड़ दिती है, पुठे पासे क्यों जाना मैं। सारा शहर डरिया डरिया, ते कहते बाबा जी ने सिर्फ नजर भर के देखा, उस गुंबद विच तेड़ा पै गया। उन्हें कहा जिहड़ा तेड़ा पाने वाला कोई वड्डा ही है, चरना ते डिग्या। सच्चे पातशाह ने कहा और देख जे ध्यान लानी ते शहर नू फूकण च ना ला, जे ध्यान लानी ते जगत नू ठारन वाले पासे। बाबा जी ने यही लाया, बाबा देख है ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजो गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी दी रीत चलाई, पर सिर्फ इको बेनसी सी धन्ना जी कहने ध्यान पक गया। इन्ना पक गया कि जिवें सिर्फ 2-3 प्रमाण ले लिए। मां नू कदी किसी ने चेते कराया भी तेरा बच्चा तेन चेते भी? प्यारिओ, चाबी भुल सकती है, जोड़ा भुल सकता है, कपड़े भुल सकते ने, पैसे भुल सकते ने, पर कदी किसी माई नू अपना पुत्र भुलिया? बच्चा भुलिया? क्यों नहीं भुलिया? क्योंकि उस बच्चे दे विच ध्यान इन्ना कुछ जुड़ गया है, वो किते भी होवे न्याणे कदी नहीं भुलते। बाबा जी ने प्रमाण बाणी च दिता है, कह लगे माई जे काम करदिया पंघूड़े च न्याणा तेनू नहीं भुलदा, जदों ध्यान पक जाए ते काम करदिया रब भी नहीं भुलदा। कहत नाम दियो सुनो तरलोचन, बालक पालन कोढ़ी अले, अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बाहर करा की अले। भगत धन्ना जी कहने मालक ने ध्यान दिता, एक हो गए। हुण अगले जिहड़ी सी विचार शुरू कीती सी, प्रेम भगत मानी, प्रेमा भगती नूं सच्ची मुच्ची अंदरों माणिया, सुख जानिया। इत्थे सी रात सुख नूं जान लिया। कहते जिस कोल प्रेमा भगती आत्मक सुख आ गया, त्रिपत अगाने मुक्त पै। ये सिर्फ 2 शब्द ते अगला पता करना ते संखेप जा करांगा, काली ना वैसे प्यार। त्रिपत अगाने अखरी अर्थ ने रज गए, त्रिपत हो गए ते अगाने का अर्थ भी रज जाना, संतुष्ट हो गए, रज गए। ते नाल वचन करते ने मुक्त भए, कले रजे नहीं सचमुच मुक्त हो गए। वो की रजना सी? हाला राती भाई साहब ने शब्द भी गाया कि गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। इत्थे भगत जी कहते बिल्कुल रज गए, तृप्त हो गए, पर वो मंग लालच वाली नहीं, उस विच तृष्णा नहीं झलकदी, उस विच भगती नूं सिमरन नूं मालक दी खुशी लई। एक जिवें बच्चा अपनी मां तो मंगदा है, भगत सचमुच दृढ़ करा रहे ने कि मता कई बार असीं कहने आ कि गुरु कोले थोड़ा मंगना है, जोड़ा मंग लीए, कपड़े मंग लीए, आपां ते रुपये मंगांगे बहुत ज्यादा। कह लगे इन्ना यकीन कर जिवें बच्चा एक निक्की तो निक्की चीज भी मां कोलों मंगदा है। ये शब्द तेनू तां सिखाया, तेनू एक वक्त दी रोटी भी मंगनी रब कोलों आ जाए, यकीन हो जाते हैं। भगत जी कह लगे तृप्त हो गए। हुण आ जिहड़ा तृप्त अगाने शब्द है, ये वाहिगुरू तरस करे ते तां बंदा तृप्त हुंदा है। ते नाले जिहड़ा महापुरख बाणी उचार रहे हैं ना, ते जे इधर झाती मार के देखिए प्यारे बट्टा सारियां पड़ छुड़ते ने, 1 इंच जिमीदार थां नहीं जे दिंदा दूजे। वो कहते बस रच गए बई, तृप्त हो गए। हुण एक भुख है वासना दी, एक भुख है संसार दे प्रभता ते माया। मन की अपनी भुख है, इंद्रियां की अपनी भुख है। भगत साहब कहते हैं सच ये मन भी तृप्त हो गया, तन भी तृप्त हो गया, इंद्रियां भी रज गईयां, ते अंदर वाला जिहड़ा मन सी वो भी रज गया। धन नाल अज तक कोई नहीं रजिया। शेख सादी ने कहा सी, कह लगे तृष्णालू बंदे चेते रखी तेरियां अखां ने कदी नहीं रजना, ये उदन ही रजणगियां जिदन इन्हां नूं कोई खाक दे सपुर्द करेगा
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਜਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰਜਾਏਗੀ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਜੇਗਾ। ਉਂਝ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲਾਖੋ ਉਠਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾ। ਰੱਜਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ? ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ, ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਬਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਬਿਤਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਪਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਘੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਘੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕੁਸ਼ੂ ਨਾ ਸੁਝੀ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਬਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਦਨ ਨੀ ਧਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਅੱਗ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਲੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਗ ਕਹਿਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੈਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਗੈਸ ਨੇ ਬਲੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗ ਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਈਂਧਣ ਪਾਇਆ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੱਕ ਧਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ लाख करोड़े मन नहीं गोरे परे परे ही को लूची है। अंदर जेड़ा वो रजदा नहीं पिया। एक ते पक्ष ये वे भगत जी कहते ने त्रिपत हो गए। हुण त्रिपत का अर्थ जो परमात्मा दिंदा है ओदा पाना ओदी रजा सत बचन करके छकने आ। ते महापुरख जिन्हां दे अमृत बोलने गुरु ग्रंथ साहिब विच ना तो ज्यादा रजवाड़े सन। भगत पीपा जी का राज है पर धन्ना साहिब जी, भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, भगत सैन जी, भगत सदना जी सारे आम किरत करने वाले बंदे कहते ने भाई संतोख परमात्मा ने ऐसा दे दिता। सबर एक दिहाड़ी करके सुक्की रोटी खांदियां भी अंदर आ गया। ते गुरु साहब ने बाणी विच क्या भाई अंदर तड़पदे उदों में जदों बंदा थाली अपनी अगे रोटी पई हुंदी है ते खान लग्गियां बुरकियां दूजे दियां वेखी जांदा। अपनी थाली ते कोई दुख नहीं। दुख उदों हुंदा जदों दूजा दिसदा है। इकल्ले नूं कोई दुख नहीं दे। इकल्ला बंदा
अपने घर विच मौज माणदा है, ते जदों अपनी कम्यूनिटी का बंदा कोई वड्डा घर नाल बना ले, मैनूं बख्श दे, उस तों बाद उस बंदे नूं चैन कोई नहीं। जदों नज़र दूजे ते जाएगी उदों बंदा भटकेगा। ताई साहब ने क्या भाई कि रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। धन पखो रज गए, तृप्त हो गए। भगत साहब कह रहे हैं, एक उदाहरण मैं देनी चाहना, हो सकता है आपनूं काफी देर दे के कथा हुंदी है। एक पति ते पत्नी साधना वाले होए ने, रंका जी ते बंका जी। पति का नाम सी रंका ते पत्नी का नाम सी बंका। ये सच्चाई है, मनोकल्पित नहीं। दोनों साधना करते हैं, अपनी उन्होंने कुटिया किरतकार करते हैं, प्रसादा पानी छकते हैं, पर दिन रात परमार्थ कमाते हैं, सिमरन करते हैं। एक दिन परमात्मा ने खेड़ वरता दी, दोनों चले जा रहे हैं। अगे अगे पति है रंका ते पिछे पत्नी है बांका। सामने ना चमकदी कोई सुनहरी चीज कोई दिसी। पति अगे सी, उन्हें ध्यान नाल देखिया ते सोना सी चमक रहा। मन च आया भी औरत का मोह प्यार सोने नाल हुंदा है। आखिर इन्ने साल दे साधना पे करने आ, किते पत्नी सोने नू देख के, इस लिश्क नू देख के कोई इहो जिहा फुरना ना बना ले नू उठाण दा। पत्नी पिछे आ रही सी ते रंका जी ने की कीता, हाथ नहीं लाए, पैरां नाल उस सोने उत्ते मिट्टी पाण लग पए भी दिसेगा नहीं, नजर नहीं आएगा। ते कई लोग इस तरह की साधना करते सन, पर वैसे गुरमत च नहीं है। एक हाथ च मिट्टी पकड़ते सन, दूजे हाथ भी सोना, मिट्टी सोना एक साधना सी। मिट्टी सोना कह के दोनों नूं बराबरता च लै जाना। सोने उत्ते मिट्टी पान लग पे। पिछों पत्नी ने आवाज दी, कह लगे पति देव अफसोस, इन्ने साल हो गए मिट्टी ते मिट्टी पाई जाते हो। ਉਹਦੇ मन से भी सोना समझेगी किते। कह लगी इन्नी साधना की लोड़ है मिट्टी ते मिट्टी पाण दी, इहनूं रहण दिओ। उन्हें कहा मैं समझिया नहीं। कह लगी जिन्नू सोना जान के मिट्टी पांदे को, जे तुहाडी बिरती विच सोना सोना है ते मिट्टी मिट्टी है। बिच ते अमृत एक नहीं कोया, सोना ते मिट्टी एक नहीं कोई। मिट्टी ते मिट्टी पाण दी की लोड़। पति सियाणा, उन्हें हाथ जोड़ के क्या भागा वालिए, सचमुच तू मेरे तो अगे निकल गई है। मेरा अंदर अजे भी सोने की खोंद नूं स्वीकार रहा है। तेरी सुरत इन्नी ऊपर उठ गई, तेरे सामने कंचन ते माटी दोनों एक हो गए। एक ये भी है अंदर जरा तृप्त हो जाए। हुण इस तो अगली बेनती जिहड़ी करनी है, यह तो माया की तृष्णा हो गई। जिहड़ी असली तृष्णा है ना, वो है साडे इंद्रियां, ये रजदियां नहीं जे। सच्चाई ये वे, ये निढाल हो जान, थक जान, पर इन्हां रजना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन ने, कहते आ जीव जिस दिन का जन्म लिया, मरण तक पता नहीं किन्ना कुछ छकिया किन्ना कुछ चकिया, पर दूजे दिन सवेरे देखियो जे रात खा के सौने ते नाश्ते का प्रबंध किचन च हुंदा, कह लगे रजी थोड़ी है, ये स्वाद नहीं जे पूरे होए। जीव नहीं रजी, अखां नहीं रजियां, कन नहीं रजे, हाथ नहीं रजे, पैर नहीं रजे। कह लगे मान लिया जाए अखां दी जोत चली जाए, कन्ना दी स्रोत चली जाए, जबान दी आवाज चली जाए, पर कहने मन फिर भी नहीं रजदा। जो कुछ भोगिया होया उन्हें चेते कर करके रस माणी जाता, तृप्त नहीं होया। इनू गुरु अंगद साहिब जी ने कहा, भाई गुरदास साहिब के बचन ने, गुरु अंगद साहिब का ते बचन ने, आखण आख न रजिया, तृप्त नहीं होया। मैं सिर्फ एक पक्ष लिया, बोल बोल के रजी नहीं। आखण आख न रजिया, सुन न रजे कन, अखी देख न रजिया, गुण गा के एक वन, भुखिया भुख न उतरै, गली भुख न जाए, तृप्त तां होवांगे, नानक भुखा तां रजै, जा गुण कहे गुणी समाए। जबान तां रजेगी जे परमात्मा नूं गाएगी, कन तां रजणगे जे परमात्मा दी कीर्तन करना च पेगा। प्यारिओ ये इंद्रे, पर जे नहीं तृप्त, एक पावरस सिमरत ग्रंथ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तृष्णा के संबंध ਵਿੱਚ एक उन्हां वचन किया, वो है एक दोहरा, वो शब्द वरते ने कवित, वो है
तन के बल अब पीठ दई अर हार गए दृगबाल संगाती। तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सुरलोक सुजाती। जगमीत सखा मुख फेर गए अर सेवक आ न पूछे मम बाती। मम आए पलांगम हे तृष्णे एक तू मम संग रही दिन राती। अर्थ मैं आखिरी कर देना सिर्फ तन के बल अब पीठ दई, जेड़ा छाला मारदा सी सच्ची मुच्ची अज वो झुकन लग पिया। वो बल शरीर का बल पिठ दे गया, बल चला गया। अर हार गए दृगबाल संगाती, जड़ियां अखां चमकदियां सन, बाल सिखाई जेड़े मित्र आए सन वो चले गए। क्योंकि कुछ ऐसे ने परमात्मा की दिती दात शरीर विच जेड़ी जन्म नाल हुंदी है, कुछ ऐसी है जेड़ी जन्म तो पहला हुंदी है, ते कुछ ऐसे ने जेड़े जन्म तो बाद हुंदे। हरकत जन्म तो पहला है, 9 दरवाजे जन्म तो पहला ने, 10वां गुप्त पहला है। पर आ दंद जेड़े ने जन्म तो बाद ने, केस जेड़े ने ये साडे विकास करते ने जन्म तो बाद। कहन के शरीर दे बल ने पिठ दे दिती, ते जेड़े इंद्रे मिले सन वो सच्ची मुच्ची सारे मित्र छड़ गए। अखां छड़ गईयां, कान छड़ गए, जबान छड़ गई। कहते जेड़े चमकदे दंद सन वो विचों निकल गए। तन के बल अब पीठ दई अर हार गए दृगबाल संगाती। तज के ए लोक बिखे हमको मैं जे बैठा वहां चल आप गए सुरलोक सुजाती। जगमीत सखा मुख फेर गए, मित्र सज्जन सारे मुंह फेर गए, पिठ कर गए। अर सेवक आ ना पूछे मम बाती। हुण तां जेड़े नौकर अगे नमस्कारा करदे सन, सच्चाई है नौकर भी साडी परवाह नहीं करदे गल दी। महाराज दी बाणी दे आधार ते मैं कवित लिया है। अर सेवक आ ना पूछे मम बाती। मम आहे पलांगम हे तृष्णे, हे तृष्णा तेनू एक उलामा मेरा रहेगा। सारे छड़ गए पर अंदर दी भुख ने मैनू ना छड्डिया। अर सेवक आ ना पूछे मम बाती। मम आए पलांगम हे तृष्णे एक तू मम संग रही दिन राती। इनू गुरु जी ने बाणी विच कहा, कह लगे पुंडर केस कुसम ते तौले। केस दुध वर्गे चिट्टे हो गए कालिया तो, क्योंकि रैन चली कि दिन आ गया ना। रैन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए, केस चिट्टे हो गए। हुण बंदा बोलता है तो इंज लगता है जिवें 7वें पताल चो आवाज निकलती है। महाराज कहने जेड़ा मंजी ते ब्याह है ना, इनू अखां तो दिसदा नहीं, कन्ना तो सुनदा नहीं, पैरां नाल चल नहीं सकदा, आवाज नहीं इहदी निकलदी। पर कहंदे ने कदी इहदे मन नूं वेखण वाला कोई होवे कि मंजे ते बीमार पिया होया भी मन दी वासना माणी जांदा। अंदर दी भुख तो ना मरी। भगत जी ने एडी वड्डी गल कह दी, तृप्ता ढाए शब्द दो ही ने, कह लगे रज गए। कोई इंद्रियां दी भुख नहीं, कोई अंदर दी भुख नहीं। ओ हजूर ने क्या पुंडर केस कुसम ते धौले सबत पताल की बाणी। लोचन शर्म बुद्ध बल नाठी ता काम पवस माधानी। बंदे दे शरीर पल्ले कुछ है नहीं पर वासना अजे भी दिखी जा। भगत धन्ना जी कहते ने भाई सज्जनों गुरु ने मेहर की, तृप्त कर दिता, अंदरों रज गए। तृप्त अगाने अगला बचन है मुक्त पए, मुक्त हो गए। हुण मुक्ति का कंसैप्ट हिंदुइज्म विच अपना है, पर जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की रोशनी च देखने ना, तो इत्थे जिहड़ा मुक्ति का विशा है, मुक्त की गल है, पर इत्थे जीवन मुक्त की गल है। जिहड़ी भगत जी कह रहे ना मुक्त पए। हुण अगला पुछ सकदा भी जे भगत जी का शरीर कायम मुक्ता ते ओह करदे ने भी बंदा मर जाए उदों बाद जन्म ते मरण च ना आवे। कहण लगे भाई इत्थे जीवन मुक्त की गल है। जिन्हों लोग कहंदे ने शरीर पिंजरा है, लोकां नूं मुक्त करन वाला पिंजरे विच आके भी लोकां नूं मुक्त कर दिंदा। इस नूं थोड़ा जिहा बेनती नूं समझिए। मुक्त कौन? हजूर दी बाणी विच आउंदा है कि प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै मुक्त पहे। परमात्मा की आज्ञा चंगी लगन लगी, कहते जिन्हों भाना चंगा लगन लग पिया ना सच्ची मुच्ची मुक्त हो गया। ये किड्डी वड्डी गल कह दी भी दो दुकान है ना। आज्ञा चंगी लगी मुक्त हो गए। बंधन ते मुक्त दो शब्द ने। बंधन के अर्थ करांगे जेड़ी चीज रोक लवे, विकास ना करन देवे, कोई बंधन है ना। वह भावें
संगल होवे भावें जंजीर होवे ते भावें रस्सा होवे, ते चेते रखो भावें मरण दे फुरने होण, जिहड़ी चीज बंदे दे विकास विच बाधा बन जाएगी वो बंधन किसे रूप च है। भगत जी ने क्या मुक्त पै, गुरु जी ने क्या प्रभु की आज्ञा आत्म की तावे, जीवन मुक्त सो कहावे, क्योंकि उस्तत भी बंधन बन जाती है ते निंदिया भी बंधन बनती है, वासना भी बंधन बनती है, प्रवृत्ति भी बंधन बनती है। कहते ने जदों भाना ही मान लिया उदों बंधन तो मुक्त हो गए। हजूर ने क्या फिर अंदर ओदे कोई पकड़ नहीं, पकड़ ही दुख जे प्यारे हो, जिथे पकड़े आप जिन्ने बैठे हैं, सिर्फ मैं मन नूं समझाने लई कह रहा। इस वक्त ना आ हुण गल कर रहे हैं, जो पिछले साल भी शायद इत्थे कीती होनी है, संसार की रचना अनुसार सिर्फ इस धरती की गल कर रहे हैं। संसार विच ते पता नहीं कितना कुछ परमात्मा ने सृज दिता, कोई था ही। इस वक्त जदों आप बैठे हाँ गल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस धरती दे हर एक कोने ते कोई ना कोई इस वेले सुखांत वापर रहा है, कोई ना कोई दुखांत वापर रहा है। इस वेले किसी के घर बच्चा जन्म ले रहा है, इस वेले जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि मरना जिउना सकिंट सकिंट का लोगों गिले, इस वेले कोई जन्म ले रहा है, तो मेरा ख्याल है जो आप गल कर रहे हैं एक दूजे को बधाइयां दे रहे हैं, तो इस वेले किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की हस्पताल में इस वेले मौत हो रही है, वापर सब कुछ रहा है, पर साडे बैठे उत्ते असर क्यों नहीं? कि वो मौत मौत नहीं, कि वो जन्म जन्म नहीं। हाँ, साडे चुगिरदे जन्म ते मौत वापरदा है। दुख वो दिंदा जिहदे नाल आपां बज्झे घुमे आ, जिहदे नाल आपां बज्झे ना होई वो भावें वापरी जाए, कदी दुख नहीं दिंदा। जुड़ना ही बंधन ही दुख दिंदा है। अपना बच्चा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾ, कभी रात भुलेगी, तो हुण इस वेले पता नहीं किन्ने कुछ जवान जाते पे चेते कोई नहीं। इस वेले बच्चे जन्म ले रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई किसी ते वार हो रहा है, किसी ते गोली चल रही है। क्यों नहीं साडे ते असर वापर रहा है? असर इस करके नहीं क्योंकि अंदरों असीं जुड़े नहीं। ये सच्चाई है, जो अंदरों कोई मुक्त हुंदा है, ਉਹਦੇ घर विच भी ये वापर जाए, वो तां भी ये फस जाता है। अंदरों मुक्त हो गए, मुक्त पै। महाराज ने क्या प्रभु की आज्ञा आत्म किताब है। जे जीवन मुक्त दी वैसे तो समर्थ गुरु की तो गल ही की है। मैं एक गल जरूर कर दिया, भाई साहब हुणी ये शब्द नाल माड़ी जी विसाखी की गल हो जाएगी ना। हजूर कलगी वाले सिख नूं गुरु ग्रंथ साहिब बुनियाद के साडी मर्यादा है, साडी नींह गुरु ग्रंथ साहिब कभी भुलिए ना। हजूर ने कितना प्यार किया खालसे ने। भाई साहब नहीं पढ़ रहे सन कि जदों ये कहना हाउ खालसे का खालसा मेरो, कहते मेरा खालसा मैं खालसे का कितना बड़ा दावा। किवें ओत पोत सागर बंदोरो, जिवें समुंदर ते समुंदर की बूंद। ते जे गुरु ग्रंथ साहिब विचों इस विषय नूं पढ़िए, हर थां ते आके जदों जगियासू ते प्रभु एक हुंदे ने, उदों खेड़ बस यही बनती है, बूंद ते सागर एक हो गए। बचन सेवक ते स्वामी मिलते ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे बहु भांति फिर सल सल समाएगा। समुंदर दियां लहरां समुंदर भी समा गईयां, तदाकार हो गए, एक रूप हो गए। ते जे हर जन नूं पढ़ो ते महाराज कहते हैं हजूर की बाणी विच कबीर पानी को वा तो क्या भया, सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर की होए। महाराज हरिवर के किवें कलगी तरके ने इस तरह के हर हर जन दुई एक है, विद विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग जो जल की बिखै समाए। पानी विच पानी समा गया, पानी च तेल नहीं जे समाता। बेनती है ये बूंद के तेल की एक बूंद पा दिओ, समुंदर के उत्ते उत्ते तरी जाएगी, समा के दिखाए खां। क्योंकि बूंद तां समांदी पई पानी दी, भावें समुंदर बहुत डूंगा बहुत गहरा है, पर ओदे कोल भी तां H2 होवे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ते एक पानी का कतरा वो भी H2 होवे। वो कहना नहीं मेरा अपना है, आ तेल वाली कहानी ना लैके आवी, इस बूंद नूं लिया, इनू जदों मेरे विच मिलाएगा मैं एक दो दिन ये नहीं भी इनू वड्डिया करांगा, विकास लई समा चाहिए। बूंद मिली ते समुंदर बनी। जदों खालसा गुरु नूं मिलिया ते गुरु वर्गा बन।
समुंदर ने मिलदियां की साधना की बूंद ने, बूंद को सागर ने एडी वड्डी शक्ति दे दी, अपना रूप दे दिता। उस हजूर ने सिर में बंधन मुक्त मुक्त भय, भगत धन्ना साहब जी कह रहे हैं मुक्त हो गए। बंधन है उस निंदिया विद्या, बंधन है हर सोग, बंधन है सोना मिट्टी। ये तंद टुटदी नहीं छेती कितियां। सच्चाई एवे तां रेशम दी तंद जे प्यारिओ, जिन्ना इनू सुलझाण लगने होर अगे उलझी जांदी। ये ताणी किते मुकदी, पात्र चेंज होई जांदे ने। कदी छोटियां भरा निक्के निक्के कोल खेडदे ने, वो पात्र चले गए, उन्हां दे सुखां मंगदियां रहियां बीबियां, विआह होया उदों बाद पति पात्र बन के आ गया, पति ली स्त्री आ गई। सिर्फ चेहरे चेंज हो रहे ने, पर अंदर दी पकड़ एक नूं छड्डदी है, दूजे नूं पकड़ लेंदी है। अंदर दी पकड़ नहीं चेंज होई, सिर्फ चेहरे चेंज होए। कदी हाय मेरा वीर ते हुण हाय मेरा पुत्र, चेते रखो हाय उठी खलोती मुक्त पै। हुण धन गुरु कलगीधर ने जिवें भाई साहब ने दस्सिया, सेव करी इन्हीं की पावत खालसे दी। वो कई बारी आप नाल इत्थे साका साझा कीता। सिर मैं एक शेर ते हजूर चोजी प्रीतम दी बंधन मुक्ता दी गल करनी चाहना, क्योंकि गुरु ते बंधन तो है ही कोई नहीं। प्यारिओ नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे ते बंधन की। पर खालसा जी सुते ने, विश्राम करते ने, ते चमकौर दी घड़ी इस वाले ते सज्जन बैठे भी कोने ने मन च आया। कुछ कीर्तनिया सिंघां नूं बेनती की, मन गए जी, भी दिल किया भी वो हुण मेले वड़ गए ने, जोड़ मेले नहीं रहे। उधर हजूर दे लालां दी शहादत है, ते थले नाच गाने कई थावां ते हो रहे। जेड़ा मत्था टेकण आया ओदा काम है सिर्फ प्रसाद कराया, बहुतांत विच मत्था टेकिया, पर किसी टावे टावे दी अख भिजदी है। कोई छोटी जी गल है? आ करबला दी गल शुरू करो, हसन ते हुसैन दी, लोग भुब्बा मार के रो पैंदे ने इस्लाम नूं मनण वाले। मन चाहे भी उथे कीर्तन दरबार करिए जिथे हजूर दे नाल शहीद होए, संस्कार होया। बड़ा सहयोग दिता इलाके ने, पर वो रात जदों कीर्तन होया, ठंडी हवा चले, हड्डियां नूं चीरे, उस रात फिर कलगी वाले दी याद आई, जो अज खालसा दी विच आ जाएगा। मुक्त शब्द दे भी अर्थ मैं टुका के कर जाऊं। खालसा जी विश्राम करते पे ने, थके ने, शरीर आखिर अज कोई सोने मंजे नहीं, कोई बिस्तरे नहीं, ते ये मिठ नहीं, ये साडा खून है, साडे खून नाल वापरिया है। थले जमीन ते पै गए ने, घोड़ियां दियां काठियां सिरहाने ने, जिदे कोल कोई बस्तर है, किसी ने थोड़ा बहुता मुख ढकिया, किसी ने लत्तां ते लिया। खालसा विश्राम कर रहे है। चोची प्रीतम ने जेड़ा आसन लाया, जो हजूर आसन से बैठते सेव करी इन्हीं की पावत, बैठते नहीं, उठे नहीं, टहलन लग पे। देखिया भी इन्हां दे भी पुत्र ने घर, इन्हां दे भी मां बाप ने, इन्हां दे भी घर मोह दियां आखिर तंदां ते हैन। कहन लगे खालसा जी, सिर्फ ओदे ख्याल नहीं पर सच्चाई है। कह लगे इन्हां सुबह चेहरियां ने दिसना नहीं, शहादत दा जाम पी जाना है, ते चित करदा अज रात इन्हां दी सेवा कर। वो सेवा की कीती, वो लिखदे ने, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केसकियां आपा शब्द वरतांगे, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केश उसके झाड़े ली खाक उसकी जमी से, सर ठीक किए सरके हुए बालशी जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से, हाशा किसी मुर्शद में ये अस्यार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं। फिर अगा लिख देने कि जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन्हों ने सवेरे शहीद होना है, जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना, उन्हां विचों लंघदे कलगी वाले, चूमा कभी खलकूम
दान चूमने बैठे, कदी खत चूमे, कदी गले चूमे, जब गुरु जी पैंती आए तो चरण चूमने बैठे। किड्डी वड्डी बात है। उथे हजूर दी जे मुक्ति दी गल, मुक्त भय दी वेखनी है तो समरथ सतगुरु ते कहंदे ने लेटे हुए है आज खालसा जी जमीन पर। जे क्या मालिक जी तुहाडी आसन है, कह लगे नहीं लेटे हुए हैं खालसा जी आज जमीन पर। किस तरह से चैन आए हमको शहनशी पर। जे खालसा मिट्टी ते पिया, मैं थोड़ा आसन ते बहना। अगली जड़ी उत्थे उन्हें गल कही, हजूर ने देखिया हुण दो पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, वो भी विश्राम च ने। आ मुक्ति दी गल कि प्रभ की आज्ञा आत्म खिताब है, मुक्त भये। दोनों पुत्रां नूं देख के कह लगे, बेटा थे चार हो अब दो ही। बेटा थे चार हो अब दो ही, सहर ये भी ना होंगे सहर दरते सुबह। थे चार हो अब दो ही, के सहर ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना हो। वाहिगुरू दा शुक्र जेड़ा पहले शब्द में प्यारे जीवन मुक्ति की गल है। ते भगत तो कह रहे हैं जेड़े खेतों च खलोते ने, कहते मुक्त हो गए। कहते बेटा तुसी भी सुबह चले जाओगे। ते सचमुच जदों दोनों शहीद हुए उस दी ख्याल सन। बड़े पुत्र ने शहादत का जाम पीता ते पिता ने कहा, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े। जदों छोटे नूं तोड़िया ते किन्ना मुक्त। कह लगे बेटा ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखे। हजूर नूं पुछिए मुक्त भय दे अर्थ की। ते अज जदों जाईदा गढ़ी साहिब वल देखीदा, ते जदों तुसी जाओ मेरी बेनती दे दिया जरूर जाओ, नमस्कार उन्हां थावां नूं करिए। नानक प्रगटिया जिस्म तां है पर वो तां मुक्त ने। हजूर कृपालू जी ने क्या भाई मुक्त के अर्थ ने कि प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव है, जीवन मुक्त सोऊ कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाहे वियोग मुक्त पै। सदा आनंद तै नाहे वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए। जीवन मुक्त धन्ना जी कहते मुक्त पाए, बंद नहीं कोई। त्रिपत आघाए, फिर रात वाली तुक के हजूर दे बचना प्रेम भगत मानी, प्रेमा भगती की कहते ने। सुख जानिया, अंदर दा सुख चंगी तरह पहचान लिया, जान लिया। त्रिपत अगाने रज गए, मुक्त पहे। अगला वचन जोत समाए समानी जाके, अछली प्रभ पहचाने। जोत समाए समानी जाके, बस ये आखिरी अर्थ। जोत समाए, जेड़ी जोत सारिया घटां भी समाई है। भगत जी का अपना अनुभव किथे पहुंचे ने महापुरख। जोत समाए समानी जाके, समानी का अर्थ करांगे जिथे शाखयात हो गई, प्रगट हो गई। जोत सारिया विच समाई है। केड़ी थां जिथे जोत समाई नहीं पर प्रगट टावी टावी थां ते। हुण समाना ते प्रगट होना दोनों च फर्क है ना। इत्थे कहंदे समाई सब दे वे पर प्रगट सब दे नहीं। पानी सारी धरती के थले नीवान विच किते ना किते तां मिलेगा, पर प्रगट चश्मे तां सारी धरती विच नहीं। पानी सारिया थावां विच है पर प्रगट टावी टावी थां ते है। जोत परमात्मा दी हर एक विच है, पर प्रगट कोई टावे टावे थां वेखदी, उत्थों फिर अंदरों फुट फुट के किरपा बाहर निकलदी। कहंदे भाई जिहड़ी जोत सारियां दे समाई सी ना, भगत जी कहंदे वो साखयात हो गई, वो प्रगट हो गई। पर वो प्रगट इवें नहीं हुंदी। सामने जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सामने चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। हजूर वचन कर रहे ने
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ ਬੰਨੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਦੂਤੈ ਦਹਿਨ ਭਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਡੱਕਾ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੱਝ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਛੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜਾਮਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਰਜਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਣੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਸਨੋਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਕੋ ਚਰਾਵਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਹਿਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲਾਵਟ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਤੀਫ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਮਾਤੀ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜੇ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐ ਧੁਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਸ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਮੀ ਧਰ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਦੌਲਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਧਰਮੀ ਧਰ। ਧਰਮੀ ਧਰ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਮੀ ਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ किन की बंधिया कांसी तांबा, किन की लौंग सपारी, संत हो बंधिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर तन जाप, हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो मन ते खारा, साथ संगत में पाया माई।
खाट आयो घर पूता धन्नै धन पाया धरनी धर्मा। हाल तां बड़े लोकी बांधे ने, देख तेरा पुत्र जिहड़ा बीज के लिया किसी को नहीं। माई खाट आयो घर पूता, हर धन चलते हर धन बैसे, हर धन जागत सूता। ओ पा लिया जिहड़ा उठिया बैठिया चलदियां, धन्ने तो कदी वख ही नहीं पुंदा। धन्नै धन पाया धरनी धर, धरती का सहारा। ते यह धन सचमुच भावना में मिलता, राज भाग नाल नहीं। गुरु साहब ने बाणी विच भी कहना, कह लगे खमरा धन गोबिंद माधो धरनी धर। यह है सार धन कही है, जो सुख हो प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लईए। धन है भगत धन्ना जी ने कहते ने मैं भगता वाली धन है, धन पाया धरनी धर। हुण इस तुक ने एक गल होर भी कढ़ देनी, साडी पत्थर च थोड़ा पाया। पर उस पौड़ी नूं आपां छड्डना नहीं। कह लगे धन है धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समानिया। कह लगे जेड़े परमात्मा च समाए संत सन, कहंदे ने उन्हां नाल उठनी बैठनी हो गई, उन्हां दी किरपा कीती, उन्हां दे राही आपां भी पा गए। हुण इस तो अगे तरतीब करेगी क्लीयर। मैं सिर्फ 2 शब्द कह के संपन्नता करना। संत जन ते इधर ध्यान उधर ना लै जाओ, जिहड़ा संत दे थले असंतां वाले काम करदा है। हुण प्रचार इन्ना हो चुका है, असी सही जीवन वालियां दी गल, पहली गल तां भी आपां सच्ची गल जे सिख जिउंदे बंदे नूं स्वीकार करन लई तैयार हो नहीं, फिर कोल किरपा होंदी। ओही बंदा जिहड़ा कथा कीर्तन करदा है, बाणी पढ़दा है, जीवन बड़ा उच्चा होवे, सच्ची गल जिस दिन मर जाए उस दिन साडे प्रचारक सारे साखियां सुणाउण लग पैंदे ने, क्योंकि जिउंदियां दे औगण दिसदे ने, मरियां होइआं दे औगण लुक जांदे ने, उदों सारे चंगे हो जांदे। पर सतगुरु दा शब्द अज भी गुरसिखां अंदर वरतदा है। संत शब्द बड़ा सत्कारयोग है। गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत थां है, ते इस गल तो बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए भी गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी की जिहड़ा संत शब्द है, यदि व्याख्या करदे नहीं जी, ये तां इस गल तो ढुकदा ही नहीं। मेरी एक बेनती है, संत शब्द बहुत पवित्र है। संत की परिभाषा, संत के गुण सारे गुरु ग्रंथ साहिब दसे, पर इत्थे संत दे कोल बैठिया प्राप्ति हो गई। भगत जी कहते ने आपां पा लिया। दुनिया की जिन्नी भी शक्ति है ना, अपने चुगिरदे में सिर्फ बेनती कर लगा। एक परिवार की उदाहरण ले लीजिए। साडे कोल जबान है, मुंह तो बोलने। एक आदमी बेवस पे है, बीमार है, वो अपने पुत्र नूं आवाज मारदा है, नाम लैंदा है। बच्चा अपने पिता की जबान तो अपना नाम सुन के ओदे कोल आ जांदा है। पुत्र कोल एनर्जी शक्ति है, बाप निढाल है, पुत्र कोल खलो के अखां भर सकता है, पर पुत्र की एनर्जी बाप विच प्रवेश नहीं कर सकेगी। बाप को ताकत है, वैगुरु बाप को ताकत नहीं, पुत्र को ताकत है। जे अपने किसी होर रिश्तेदार नूं आवाज मारे, वो नजदीक आ सकते हैं, पर अपनी शक्ति नहीं। जबान विच ताकत जरूर कि दूर नूं आवाज दिती, वो कोल आ गया, पर वैगुरु जी ऐसे नहीं कि जे कोई जबान तो पुकारदा है तो वैगुरु कोल हुंदा है। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जदों कोई जबान तो पुकारदा है, वैगुरु की शक्ति उस शरीर विच प्रवेश कर जाती है। बाकी ना सुन के नजदीक आउंदे ने भी मैनूं सद्दिया मैं कोल जावां, पर अंदर नहीं प्रवेश करदे। वैगुरु जी ऐसे ने कि वो जिहड़ा पुकारदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर जाते हैं। हर सिमरन में आप निरंकारा, आप विच दूर नहीं। साहब ने क्या भाई नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। बच्चे का नाम आवाज लईए, जबान तो कोल हुंदा है, पर जबान ते नहीं वसदा। पर वाहिगुरु जी का नाम लईए तो जबान उत्ते वसन लग पैंदे। जबान ते वसन का मतलब की? रसना ते मतलब भी वो शक्ति जिहड़ी वाहिगुरु जी दी है ना, वो जपण वाले की जबान विच प्रवेश कर जाती है। उन्होंने महाराज जी ने कहा भाई जाका कया दरगाह च। इत्थे भगत जी ने कहा भाई संत जना नूं मिल के पाया, ते संत जन सच्ची मुच्ची कमाई वाला कोई गुरसिख, कोई जपण वाला प्यार करने वाला मिल जाए। महाराज कहते संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दूर गवाए। जो चाहत
सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाया। धन है धन पाया धरनी दर, मिल जन संत समानिया। हुण इस तुक दे अर्थ अगला शब्द करदा है। वो किहड़े संत सन, वो कौन सन जिन्हां बारे भगत जी ने सुनिया ते जिन्हें पत्थर दिता ओहदा तां जिक्र भी कोई नहीं कीता सारे शब्दां च। तरलोचन ने दिता ना, ये तरलोचन वो नहीं जिन्हां दी बाणी है, तरलोचन होर सी ब्राह्मण। वो भी तरलोचन ने जिन्हां दे शब्द ने हरिबाई गोबिंद नाम मत विसरा, वो तरलोचन ने। ये वो सी जिहड़ा पुजारी सी। हुण ये देखो किहड़े संत सन, ਇਹਦਾ खुलासा फिर धन गुरु अर्जन साहब ने किया। महला पंजवां सरलेख रखिया ते शब्द समाप्ति धन्ने नाल कीती। सिर्फ वो संत सन, ਇਹਦੇ अर्थ आपां डिटेल नाल बाद च करांगे। सिर्फ अज प्रमाण वजों धन्ने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया। वो संत सन गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छिपरो होयो लाखीना। बुन्ना तन्ना त्याग कै आ संत जन, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोहला रो भयो गुणी गहीरा। रविदास चवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संगार दर्शन पाया। सैन नाई उतकारिया वो घर घर सुनिया, किरदा वसिया पार ब्रह्म भगता में गनिया। ये भी तो सुन कै जाट लो आ ने संत जन, ये भी तो सुन कै जाट लो उठ भगती लावा। सिक्का जाट लो शब्द वरते हुण साडे बंदे दूजे पासे ना खिच के लै वो आपां तां भगत भी बन के रख दिते। साडा धन्ना साडा नामदेव साडा कबीर वो बाबे सारे इकट्ठे करके क्या भी तुसी ना ये भी नहीं कहा कि कला गुरु नानक तुसी को गया जे धन गुरु ग्रंथ साहिब चानन दे दो। पर ये भी सुन के जाट लो उठ भगती लावा। उठिया सूरमा उन्हें कहा भी मैं आ नहीं बदातियां वाली गल मंनी, वित्ते नागना तो कुत्ते वे परम पातो कुत्ते वे आ गुरना आया आ सत भूमका कुत्ते वे खाट चक्कर भेज के फिर कुत्ते वे आ सहसर गल खुलदा तां हुंदा उत्तों अमृत टपकदा तां हुंदा। कहना मैं वादा हल मैं सीधा जिहा बंदा वां, मैं ना पढ़िया वां, आ रज केड़ा तम ते सतगुण केड़ा मैनू नहीं पता। 6वीं 7वीं भूमिका की किनियां भी भूखा ने, मैनू तां बस इक्को चाहिदा जिवें मैं इस तरह। यही है ना न्याणे वाली मत जिद कर दी। कह लगे जिवें मैं इस तरह आ मेरे नाल गल्लां कर। कहंदे ये भी तो सुन कर जाट लो उठ भगती लागा। फिर परमात्मा ने कहा नहीं हुण जाना ही पैना, मिले प्रतख। हुण प्रतख दे अर्थ की प्रगट हो गए, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। वो वड्डियां भागां वाला महापुरख जिन्हां दा शब्द इस वार आपां विचारिया है 7 दिन। उंज कथा करन तो बाद जरूर लगा ये शब्द इन्ना गहरा सारा ये आ गई गल दुनिया की। जन्म तो शुरू किया आवागौण तो अभेदता तक लै सारी गल्लां विच कर दित्तियां भी की बंदिया तू करना तेन करना की चाहिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे 7 दिन शब्द विचार बाणी पढ़दी बेअंत फुलां पईआं। आप साध संगत जी कृपा करके बख्श लिया जी। संगत का धन्यवाद, इत्थे गुरु के वजीरां का धन्यवाद।